Morning students, welcome to the online class. I am your SST teacher and the chapter we have started was our democracy. हमने चैप्टर 4 सिविक्स का स्टैंडर्ड 6 का डेमोक्रेसी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पढ़ा था जो कि साउथ अफ्रीका में चलाया जाता था और लास्टली नेल्सन मंडेला ने इस सिस्टम को अबॉलिश करा। और मैंने आपको बोला था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेट्स स्टार्ट द topic. Our first topic is people's participation. People's participation in the affair of government is an important feature of democracy. People participate in elections through which they choose their representative to form the government. In India, the government is elected for a period of 5 years, after which elections are held again. If people are not happy with the government's performance, they are free to elect a new government. Apart from election, people also participate in the process of governance by other means as well. They can hold protest march and rallies if they feel that a particular policy of the government is against their interest. People also protest by distributing pamphlets, holding meeting and rallies, performing street plays and dramas. Sometimes protests get violent. People destroy vehicles or property owned by the government to protest against government policies. Employees of organizations sometimes go on strike and refuse to work to fulfill some of their demands. Signature campaigns are also a form of protest, where people collect signatures on a particular issues and submit them to the government in a form of a mass appeal. Groups of people also organize themselves into a social movement to draw attention of the government and the masses toward issues relating to environment, social inequality, etc. The Narmada Bachao Andolan and the Chipko movement are some example of social movement. Media plays an important role in ensuring people's participation. Newspaper, television channels and radio reports highlights important issues to keep people informed about various developments and issue of key concern. They try to be impartial in their views so that people are able to form their own opinion and judgment. Media sometimes organizes group discussion among citizens to know their opinion on a particular issue. Sometimes questionnaires with the various questions are circulated among the people. The response to these help to understand the sentiment of the people. देखिए, अब हमारा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में डायरेक्टली होता है, हम गवर्नमेंट में पार्ट कैसे लेते हैं डेमोक्रेसी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। तो हम डायरेक्टली ना पार्ट लेके हम अपना एक नेता रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और गवर्नमेंट फिर बनती है। तो इंडिया में गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है हर 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। अगर हम अपनी सरकार जो हमने खुद से चुना है उससे हम हैप्पी नहीं है, मतलब वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने गलत सरकार को चुन लिया, तो हम फिर से नया गवर्नमेंट खड़ा कर सकते हैं। तो पीपल के पास देखिए कितना ताकत है कि वो एक नया गवर्नमेंट को फिर से फॉर्म कर सकता है। इलेक्शन के बाद पीपल पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारी चीजों में। अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट करने का बहुत सारा तरीका है, हम मार्च करते हैं, रैलीज निकालते हैं ना, पर्टिकुलर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और पैम्पलेट्स बांटते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं, रैली, फिर उसके बाद हम स्ट्रीट प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, कहीं पे बैठ के धरना देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि हम उनका डिसीजन से खुश नहीं है। कभी कभी हम सिग्नेचर कैंपेन करते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर इश्यूज पे सारे पीपल से सिग्नेचर लेके गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि ये मास अपील है, वो अपने डिसीजन को चेंज करे। इस तरह से हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और मीडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि अश्योर करता है पीपल का पार्टिसिपेशन को। न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स, रेडियो रिपोर्ट्स हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंट इश्यूज को ताकि पीपल को पता हो सके। जैसे मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो हम कैसे जाने कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो हम मीडिया के थ्रू जाने।
तो इस तरह से मीडिया क्या करती है, हमें गवर्नमेंट से जोड़ के रखती है और उनके डिसीजन को बताती है। और अगर हमें किसी भी चीज से को मतलब अगेंस्ट होते हैं, हमें कोई भी चीज उनका डिसीजन अच्छा नहीं लगता, तो मीडिया ही है जो गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को यानी कि लड़ाई झगड़े भेदभाव को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब तक हम यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।